So, okay, so now I'm going to start trigger scenario. And yesterday we learned some trigger, okay, like how can we write before insert trigger, how can we write after insert trigger, how can we write before update trigger. Okay, so these things we studied tomorrow. So now what's the requirement? Okay, and we also learned how can we create a validation rule, how can we provide the automation. What I want you can say we have studied one thing that is feed tracking. Okay, so in admin part we have feed tracking, which means we can track the information like what was the old value and what's the current value and which user has changed the value. Like if they are 10 user in our company and one user has changed the value. Okay, earlier we have entered 10 digits of phone number and one user has changed. He has written 8 digit phone number. Okay, and he has changed the phone number of multiple account. Okay, so if he will change the phone number of multiple account, so we will get unvalid phone number. Okay, so there is no use of phone number. Okay, so I want who has changed the phone number. Okay, what was the old value. So these information I want. Okay, अगर किसी ने एक्सेस दे रखा है हमने ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का लाइव डेटा ही कैन व्यू, और वो लाइव डेटा को ही बेकार कर रहा है, ईमेल चेंज कर रहा है, इनवैलिड ईमेल डाल रहा है, इनवैलिड फोन नंबर डाल रहा है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कस्टमर से. Okay, so what we have to do, if any user is trying to change the phone number, email, these field, we want the username and we want old value. What was the old value and who has changed? ठीक है उस so these thing I'll do by trigger. Okay, before that, yesterday I completed one scenario and in which I have used two for loop. Okay, so before first I'll do this scenario. Okay, by another way, then I'll teach you how can we track the information. Okay, how can we track the field information. So if you want old value, if you want to compare old value as well as new value, so you can use trigger dot new context variable and trigger dot old. Okay, if you will use list type of variable, so you have to write iterate the loop inside the loop. Okay, you have to write two loop in, you have to write inner loop, okay, and outer loop. If you don't want to write two loop, so what you can do, you can pass map type of data. Okay, you can pass map type of data. So here you can also write trigger dot old map. Same scenario I'm going to do it. So now time I'm passing map type of data. So public static void before update second method, and in this method I'll pass new value. So list of account, new ACC list, then I'll pass map. In map I'll get ID. Okay, I'll get account record. So name I'm writing old map record. So class and method I'm going to call in the trigger. ठीक है, error message we will show with the help of map.
So first I'm passing trigger dot new, then I'm passing trigger dot old map. Going to save it. Yeah. So now there is no error. Now I'm going to write the logic in this method. ठीक है, हमें क्या करना है कि करंट का नेम पुराने नेम के बराबर नहीं होना चाहिए. करंट नेम इट शुड नॉट बी इक्वल टू द ओल्ड नेम. Okay, so what's the first step? We have to iterate the new information. Always we will iterate new information. So I'm going to iterate the new record information. New ACC list I'm going to iterate. ठीक है. Okay, I am iterating it. So now what we have to check? Current name should not, if current name is not equal to the old value. ठीक है, मतलब कि किसी ने नेम चेंज किया है. That time we have to display error message. Okay, so I'm writing condition. If current name acc dot name क्या नहीं होना चाहिए, पुराने नेम के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है. ओल्ड डेटा वेयर वी हैव ओल्ड इंफॉर्मेशन. ओल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास मैप में है. ठीक है, मैप में हम किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं? If we will see the map, in map we have two type of information, id and account. ओके, वी आर स्टोरिंग id एंड अकाउंट. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि जो, ठीक है, मुझे चाहिए अकाउंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है. वी विल से फर्स्ट अकाउंट, पहले अकाउंट का नेम निकाल लो. पहले अकाउंट तक पहुंच गए हम. फोन ईमेल कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. इफ यू विल गो टू द फर्स्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन निकल जाएगी. ठीक है, हमें कौन से अकाउंट पहुंचना है? वी हैव टू गो टू दैट अकाउंट विच अकाउंट वी आर मॉडिफाइंग. ठीक है, जिस अकाउंट का नेम हमने मॉडिफाई किया है उस अकाउंट पे जाना है. ठीक है, अगर उस अकाउंट पे जाना है तो आपको आईडी पास करनी पड़ेगी. अगर आपको मैप से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, किसी भी अकाउंट की, तो आईडी पास करो. ठीक है, अब हम कोई रिकॉर्ड जो मॉडिफाई करेंगे उसकी आईडी होगी. जो मॉडिफाई कर रहे हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको मैप के अंदर भेज रहा हूँ आईडी को. ठीक है. सो ओल्ड मैप डॉट, if you want the value on the basis of key, if you want the value from map on the basis of key, so we use get method. In list also we use get method. On the basis of index we can take the value. ठीक है, इंडेक्स के बेसिस पे हम डेटा स्टोर करते हैं लिस्ट में, तो गेट यूज करते हैं. मैप में की वैल्यू के, तो की के बेसिस पे वैल्यू चाहिए तो गेट मेथड का यूज करता हूँ. तो आई हैव यूज गेट मेथड एसिस डॉट आई डी. ठीक है, तो मैंने लिखा है ओल्ड मैप डॉट गेट एसीसी आई डी. वॉट इट विल रिटर्न्स टू मी? क्या रिटर्न करेगा ये? आईडी, आईडी रिटर्न करेगा. अकाउंट आईडी, कौन से, हाँ, कौन से वाले रिकॉर्ड की आईडी रिटर्न करेगा ये? जिसमें जिसको हम एरर मॉडिफाई कर हो। रहे हैं. ठीक है. आ, जिसको मैं हम्म, डेटाबेस में गया, मैं कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैंने मॉडिफाई किया, अपॉर्चुनिटी का नेम या अकाउंट का नेम चेंज किया. सैंकी को मॉडिफाई करते हैं हम. ठीक है, आई हैव गोइंग टू चेंज द अकाउंट नेम. ये फाइल क्लिक ऑन दी सेव. ठीक है, सेव करूंगा तो पहले बिफोर अपडेट वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होएगा. ठीक है, इट विल चेक वी हैव टू पॉपुलेट, मींस वी हैव टू पॉपुलेट दी सम डेटा इन फील्ड और नॉट, वी हैव टू फाइंड दी वैलिडेशन रूल और नॉट. वी विल, ओके, इट विल चेक. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी आईडी भेजनी है. आईडी चलेगी इसकी, जो भी मॉडिफाई करे वो आईडी भेज दी. ठीक है, अब हमारे पास आईडी है. आईडी है या मतलब अकाउंट का रिकॉर्ड है, उसकी मुझे नेम की वैल्यू चाहिए. तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक वेरिएबल है एसीसी अकाउंट टाइप का. मुझे एसीसी में नेम
में वैल्यू एंटर करनी है या नेम की वैल्यू चेंज करनी है, क्या क्या क्या, क्या लिखते हैं हम? ACC डॉट नेम। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम। अब मुझे क्या मिल गया, मैंने लिखा है ओल्ड मैप डॉट गेट ID। अगर मैं ID पास करूंगा मुझे अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट में से डेटा निकालना है आपको, तो अकाउंट डॉट नेम, नेम लिख दो, नेम मिल जाएगा आपको। ईमेल लिखोगे, ईमेल मिल जाएगा। अकाउंट डॉट, इफ यू विल राइट फोन, यू विल गेट फोन। अकाउंट डॉट ईमेल, इफ यू विल राइट, यू विल गेट द ईमेल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, और जो डेटा आएगा वो पुराना डेटा आएगा, क्योंकि ओल्ड मैप मीन्स इट विल रिटर्न ओल्ड डेटा। पुराना फोन नंबर क्या था, पुराना नेम क्या था, पुराना ईमेल। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे अकाउंट मिल गया, मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट लगा रहा हूँ, एंड आई एम राइटिंग नेम। सो हेयर आई विल गेट दी ओल्ड नेम। हमने कंडीशन लगा दी, करंट नेम डज नॉट इक्वल टू दी ओल्ड नेम। ओके, ओल्ड मैप रिकॉर्ड। ठीक है, आई हैव रिटन दी कंडीशन कि अगर नेम पुराना नहीं है तो एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है। Whatever error message you want to display, write it here. ACC dot add error. What's the error message? Sorry user, you can't modify account name. Okay, sorry user, you can't modify account name. तो सिर्फ ये 4 लाइन में कोड लिखना होगा। ठीक है, एंड if I'll save, I'll try to change the name, so I'll get error message. सेव बटन पे क्लिक किया, sorry user, you can't modify account name. अगर डेटा सेम है तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, इफ डेटा इज नॉट सेम, I'll get the error message. ठीक है, जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी, फोन नंबर हमें चेंज नहीं करने देना, ईमेल, नेम, सो व्हाट यू विल यूज, दैट टाइम यू कैन यूज ट्रिगर डॉट ओल्ड, एल्स यू कैन यूज ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, ट्रिगर डॉट ओल्ड यूज करोगे तो 2 लूप लिखनी होगी, थोड़ा कोड लेंथी होएगा। ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप यूज करोगे तो सिर्फ 4 लाइन का कोड होगा। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या इट्स अ डिफिकल्ट टू यूज मैप, बट इफ यू विल understand the concept of map, will be a good developer. Okay, whenever you will get the chance to on work on the map, try to work on the map, because you will learn something. अभी किसी को कोई डाउट है कि कैसे मैप का यूज हुआ है, हाउ फंक्शनलिटी इज वर्किंग? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम। गुड। ओके, सो ऑल रिकॉर्ड मैप ऑल डेटा देगा कंप्लीट।
डॉट गेट आईडी, हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड का वो चाहिए, अकाउंट की इंफॉर्मेशन। सो इट विल गिव द पर्टिकुलर अकाउंट इंफॉर्मेशन। उस पर्टिकुलर अकाउंट में से एक फील्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए, सो डॉट नेम। यू कैन राइट डॉट नेम डॉट फोन लाइक दैट। ठीक है, अगर ये सिनेरियो सभी को समझ में आया तो आगे चलें। Yes, sir. या गुड। सो नेक्स्ट इज, if let's suppose first we are entering phone number 111, and one user come and he's changing the phone number, he's entering 222. Okay, so it's the rule, we have to enter 4 digit of phone number. It's a, you can say, 10 digit of phone number. User came and he's entering 5 or 6 digit of number, it's an invalid phone number. So what I want to track it. Okay, I want to track the filled information. So I have to display some message. Okay, in description field. Okay, I want to track the field. So let's suppose in description, in account description, I have to write one message. Okay, like you have changed the phone number. Yeah, phone number has been modified. Phone number has been modified. Yeah, change. Why username? Okay, so and username we can write. If Koransu has changed, so I won't write Koransu. Okay. So I want to display old phone number as well as new phone number. So phone number has been modified from, okay. I want to display old phone number to new phone. ओल्ड फोन टू न्यू फोन। ठीक है, जैसे कि 222, न्यू फोन हमने चेंज किया, ओल्ड फोन 111। अब कोई भी यूजर आता है फोन नंबर चेंज करेगा, तो पुराना फोन नंबर ये था 111, ये डिस्प्ले हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और उसने जो न्यू फोन नंबर एंटर किया है, न्यू फोन नंबर 222। ठीक है, एंड आई वांट डिस्प्ले यूजर नेम आल्सो, कि किस यूजर ने वो चेंज किया है। ठीक है, सो इट वाज आवर सिनेरियो विच वी हैव टू कंप्लीट। ओके, सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। तो पहला क्वेश्चन, आई नीड न्यू फोन वैल्यू। सेकंड, आई नीड ओल्ड फोन वैल्यू। ठीक है, हाउ हाउ कैन आई गेट न्यू फोन वैल्यू एंड ओल्ड फोन वैल्यू? एनी आइडिया? Trigger dot new and trigger dot old. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैम, ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड। ठीक है, ओल्ड में हमें ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी, न्यू में न्यू मिल जाएगी। ठीक है, बट व्हेन वी विल यूज ट्रिगर डॉट न्यू एंड ओल्ड टुगेदर, वी हैव टू राइट टू लूप, वी हैव टू राइट टू लूप। ओके, हम सो मैप यूज कर सकते हैं। what we can do, we can also use map। ठीक है, we can use map। so what I'm doing, I'm going to use the map। ठीक है, मैप से ओल्ड वैल्यू निकालेंगे, न्यू से न्यू वैल्यू। ठीक है, और what we also have to check, अगर फोन नंबर चेंज हुआ है, if user has changed the phone number, that time we have to
डिस्प्ले द इन्फो इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर यूजर ने फोन नंबर चेंज किया है उसी टाइम हमें डिस्प्ले करानी है इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन फील्ड में। अगर यूजर कोई और फील्ड चेंज करना कर रहा है तो उस टाइम हमें डिस्प्ले नहीं करानी। ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब कंडीशन चेक करते हैं कि जब भी हमें चेक करना होगा कि फोन नंबर या नेम चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो हमारे पास हमें पता है कि न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू कंपेयर करा दो कि दोनों इक्वल नहीं है तो वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, सो दैट लॉजिक आई एम गोइंग टू राइट। सो हेयर आई एम गोइंग टू राइट वन लॉजिक। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू यूज इफ कंडीशन एंड हेयर राइट कि फोन नंबर चेंज हुआ है या नहीं। तो न्यू फोन नंबर आई विल गेट इन ACC एंड ओल्ड फोन नंबर we will get in map. So old map record dot cat से हम आईडी पास करेंगे। जो रिकॉर्ड मॉडिफाई करेंगे वो ACC में आएगा। करंट आईडी पास करी, वी विल गेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। फ्रॉम हेयर वी विल गेट फोन नंबर। पुराना फोन नंबर यहाँ से मिल जाएगा उसी रिकॉर्ड का जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है दैट टाइम वी हैव टू डिस्प्ले, वी हैव टू पॉपुलेट द डेटा इन विच फील्ड वी इन डिस्क्रिप्शन फील्ड। सो AC dot description, now write the message. So phone number has been changed या modified from, अब क्या लिखना है हमें, पुराना फोन नंबर, फ्रॉम ओल्ड फोन नंबर। ओल्ड फोन नंबर चाहिए, हमें पता है कि मैप के अंदर है। ओल्ड मैप रिकॉर्ड डॉट कैट, जो भी जिसका फोन नंबर चाहिए उसकी आईडी पास करो, आईडी पास करी डॉट फोन, वी विल गेट ओल्ड फोन नंबर। ये लाइन लिखी है मुझे मैंने, ओल्ड फोन नंबर, ये लाइन ओल्ड फोन नंबर देगी। देन टू, ओके, टू न्यू फोन नंबर वी हैव टू एंटर। सो न्यू फोन नंबर ACC dot phone plus we have to write phone number has been changed from this to that by username. Okay, by username. So how we will get the user information? So you can write user info dot get name। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड जो भी यूजर मॉडिफाई कर होगा उसका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यूजर इन्फो डॉट गेट नेम डॉट गेट ईमेल वॉट एवर यू वांट टू फैच यू कैन राइट इट। नाउ सेव इट। ठीक है, अब फोन नंबर हैज बीन चेंज फ्रॉम, दिस मैसेज विल डिस्प्ले। Okay, I'm going to check it. It's working well or not. Okay, I'm on Sankey record. Here, description, helper class working. Now what I'm doing, I'm going to change the phone number. Click on save. Again, checking description. Phone number has been changed from null to 111 by Quran Susani. Again, if I'll modify the number and click on the save, the phone number has been changed from 112 to 22 by Quran Susani. ठीक है, नाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई विच यूजर इज चेंजिंग द नंबर। यूजर का नेम पता चल जाएगा, कुरान से बदला। पहले क्या वैल्यू थी, इट इज कमिंग हियर। ओके, सो इट्स अ वे टू ट्रैक द फील्ड, व्हाट वाज द ओल्ड वैल्यू, व्हाट्स द करंट वैल्यू, एंड विद द हेल्प ऑफ मैप वी आर एबल टू इजीली अचीव इट। ठीक है, ये वाला सिनेरियो भी सभी को समझ में आया। इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं सर? अभी करना चाहते हो?
नहीं हम मतलब आप एक असाइनमेंट देते ना। हाँ, या आई विल गिव द असाइनमेंट. ओके सर। Okay. Till now, I have given the assignment one before insert trigger. Today, I'll give the assignment one after insert, before update, and after update also. ओके। Okay. So, if you want to understand any line, you are unable to understand the any line, you can ask. ठीक है, कुछ भी लाइन का कोड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, यू कैन आस्क. सिंपल है सिनेरियो दिखने में, बट सिंपल है नहीं. ठीक है, सैंकी मुकुल ओके है ना? Yes, sir. गुड. Okay, so before update, yeah, we have completed before update. We have taken many scenario. Now I'm going to teach you after update. Okay, I'm going to teach you after update. So what was the scenario? If we are changing the phone number of account, ठीक है? So if we are changing the phone number of account, so phone number of all associated contact should be changed. If we are changing the phone number of account, so phone number of all associated contact should be changed, and it should be account phone number. Whatever you will enter in account, that should be the contact phone number. ठीक है, इट्स अवर रिक्वायरमेंट कि अगर एक अकाउंट है, वी हैव वन अकाउंट एंड दे आर फोर एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट. Contact one phone number was 222, then contact two phone number was 333, और सारे फर्स्ट अकाउंट से ये एसोसिएटेड है. अगर मैं फोन नंबर चेंज कर रहा हूँ फर्स्ट अकाउंट का, आई वांट टू चेंज दी फोन नंबर ऑफ एवरी एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट. सबका फोन नंबर क्या होता है जो भी मैं काउंट कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है. पहले हम चेक करेंगे कि ट्रिगर किस पे लिखना है. तो अकाउंट का चेंज करना है अकाउंट. इवेंट जब भी हम अपडेट करेंगे, ठीक है, बिफोर ट्रिगर कौन से टाइप का ट्रिगर यूज करेंगे, बिफोर या आफ्टर, वो हमें समझना है. सो कैन यू टेल मी विच ट्रिगर वी विल यूज हेयर, बिफोर या आफ्टर करना है कि अकाउंट को चेंज आफ्टर। करे, कॉन्टैक्ट चेंज करे. ठीक है, आफ्टर. आफ्टर क्यों करना है हमें? व्हाट्स द तो रीजन? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, मतलब हाँ. एक ऑब्जेक्ट से चाइल्ड ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि हम सेम ऑब्जेक्ट का डेटा नहीं चेंज कर रहे या नहीं पॉपुलेट कर रहे, दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, तो इसलिए हम आफ्टर का यूज करेंगे. ठीक है. ओके, नाउ आई वी विल टेक वन सिनेरियो ऑफ आफ्टर अपडेट. ओके, if you want to remove this code you can remove because it's a code. So what I'm doing, I'm going to create one method in this class. ठीक है, इस क्लास में लॉजिक लिखना है, इसमें लिख लो, else you can create new class. So public static void after update method. ठीक है, after update method.
सो ठीक है, अब इसको समझते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कि क्या अप्रोच होएगी, कौन से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज करने हैं, हमें कौन से नहीं करने। ओके, हाउ वी विल आइडेंटिफाई विच कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल वी विल यूज या विच कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल वी विल नॉट यूज। ठीक है, तो पहला, इफ वी आर चेंजिंग द फोन नंबर, पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, कि फोन नंबर चेंज हुआ या नहीं हुआ ऑफ अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, फोन नंबर चेंज हुआ या नहीं हुआ है अकाउंट। फोन नंबर चेंज हुआ तो लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए, एल्स लॉजिक नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे अचीव करेंगे, हाउ वी विल अचीव फोन नंबर हैज बीन चेंज और नॉट। ठीक है, अभी सिनेरियो क्या है कि फोन नंबर चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये अचीव करना है, तो हमें ट्रिगर डॉट न्यू का यूज करना होगा, एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, वी विल यूज ओल्ड मैप। ठीक है, तो हमें कम लाइन का कोड लिखना होगा, तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का है, तो यूज करना पड़ेगा ही। ठीक है, पहले ही स्टेप से पता चलेगी कौन से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल मैंडेटरी है यूज करना। ठीक है, दूसरा स्टेप लिखते हैं कि फोन नंबर चेंज हुआ। फोन नंबर चेंज हुआ तो हमें क्या चाहिए, कि न्यू फोन नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट में लिखना है। न्यू फोन नंबर हमें कहाँ से मिल जाएगा, ट्रिगर डॉट न्यू से, कॉन्टैक्ट में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, और सब हम आराम से कर देंगे। ये डेटा करना है हमें, मेन मोटिव कि फोन नंबर चेंज हुआ या नहीं हुआ, हुआ है तो न्यू फोन नंबर दे दो। ठीक है, ये दोनों हमें कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखता इन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करता हूँ। So I'm going to create list of account, new record list, comma map of ID, comma count, old map. ठीक है, now I'm going to call it in trigger. So trigger में हमें कौन सा करना है आपके, after update. So write the condition else if. ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसमें आए कोड trigger dot is after, and trigger dot is after update. ठीक है, so I'm going to call the class. So class is same, we have to change the method, after update method, and we have to pass one list type of data, map type of data we are saying. ठीक है, यहाँ तक तो सभी को ओके है। एक बस मेथड क्रिएट किया है, मेथड को लिंक किया है क्लास ट्रिगर से। दिस कोड इज ओके टिल हेयर।